Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication, to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform, will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. So we meet once again and continue with the very first topic of economics. Well, continue कहना गलत होगा, because the first lecture was about the introduction of the various chapters, जो मैं दिखा देता हूँ. So you will list of 10 chapters. Actually थोड़ा ऊपर जाओगे तो you see a 3A 3B. अब उसको अलग अलग अगर करेंगे तो फिर ये 10 नहीं 11 हो जाते हैं. टेक्निकली 11 चैप्टर्स है, ओके, इंडिविजुअली. हाँ, वी स्टार्ट विथ द वेरी फर्स्ट वन, जिसका नाम ऑब्वियसली फर्स्ट में दिया गया है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. आई रिपीट, राइट अबाउ. ओके, टू वर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट, माइक्रो एंड मैक्रो. थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको डेफिनेटली रहेगा if you listen to these two words, micro and macro. Means micro meaning small and macro meaning big. So during this 12th standard of yours, learning and mind teaching, we will be going through chapters which will explain to you the various concepts, okay, of microeconomics and the various concepts of मैक्रोइकोनॉमिक्स. ओके, क्वाइट सिंपल. अगर आप मार्केट में जाते हो कुछ खरीदने के लिए, और अगर आप भैया जी से बोलो कि मेरे को एक ही एप्पल देना, एक एप्पल, ज़्यादा नहीं चाहिए, घर पे कोई है नहीं, खाता नहीं है, मैं ही खाता हूँ, ओके, तो वो एक बन जाता है माइक्रो, ओनली वन. बट इफ़ यू टेल दी भैया जी, अरे नहीं, घर पे पूरा मेहमान का टीम आएला है, आप 5 डजन पैक कर दो. 5 डजन मल्टीप्लाई बाय आप 12 करोगे तो यू आर ऑर्डरिंग अ लॉट ऑफ. सो दैट इज मैक्रो, बिग. तो इन द एंटायर सीरीज ऑफ चैप्टर्स फॉर योर 12th स्टैंडर्ड, यू विल बी डीलिंग विथ माइक्रो इकोनॉमिक, माइक्रो फैक्टर्स, एंड यू विल बी डीलिंग विथ मैक्रो फैक्टर्स. सिंपल बात है, आपका घर, ओके, इकोनॉमिक्स ना एक ऐसा वर्ड हो जाता है और इसके वजह से एक ऐसा सब्जेक्ट बन जाता है दैट मैनी, आई टोल्ड दिस इन द फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑल्सो, सिलेबस का जब इंट्रोडक्शन किया था, दैट मैनी स्टूडेंट्स फॉर डिफरेंट रीजंस, उनको ये सब्जेक्ट नहीं पसंद आता है. मैंने ये पहले भी बोला था और अभी भी बोलता हूँ कि OCM
SP, मे बी इंग्लिश, ओके, मे बी हिंदी। अगर इस पे क्वेश्चन आता है ना, आप कुछ तो लिख सकते हो, समथिंग, कोई कहानी लिख दोगे। बट व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक्स, कहानी लिखना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज द सब्जेक्ट इज अ लॉट डिफिकल्ट इन द लैंग्वेज। आई टोल्ड दिस प्रीवियसली ऑल्सो, ये आपका व्हाट्सएप का, स्नैपचैट का, इंस्टाग्राम का नॉर्मल हाय हेलो नहीं है, नो। ओके, द लैंग्वेज ऑफ इकोनॉमिक्स in which you get so many different wordings, elasticity, marginalism, okay, perfectly competitive, now demand supply, these are some wordings जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल नहीं करते हो। ओके, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि जितना सिंपल मैं मेरी भाषा रख सकूं, जितना मैं डुअल टोन में बात कर सकूं। अब उसका मतलब है थोड़ा थोड़ा अंग्रेज़ी, थोड़ा थोड़ा हिंदी, जितनी मैं जानता हूँ उसमें कोशिश ज़रूर करूँगा, ताकि जो बच्चों सिर्फ अंग्रेज़ी समझते हैं उनको भी थोड़ा समझ में आ जाएगा, और जो सिर्फ हिंदी समझते हैं उनको भी थोड़ा आ जाएगा, और जो दोनों दोनों समझते हैं उनको भी बहुत बहुत आ जाएगा। ओके, सो इन आवर फर्स्ट चैप्टर which is introduction to micro and macroeconomics, you will learn something connected to micro factors and you will learn something connected to macro factors. 5 मिनट बैक मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि आपका घर, आपका परिवार एक ही परिवार है ना। नॉर्मली आजकल क्या है ना, न्यूक्लियर फैमिली हो चुका है। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब क्या है, 3 भाई, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे। नॉर्मली एटलीस्ट शहरों में, इट्स नॉट नॉर्मली, क्योंकि घर काफी छोटे हो गए हैं और बड़े बड़े घर खरीदने की हिम्मत काफी लोगों के पास नहीं है, क्योंकि वो बड़ा बड़ा पैसा उनके पास नहीं है, काफी लोगों के पास एटलीस्ट नहीं है। तो न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट हो चुका है कि मम्मी पापा, एक बच्चा, 2 बच्चे हो सकते हैं, 3। ओके, तो दिस इज अ माइक्रो कॉन्सेप्ट। ओके, जब आप बोलो मेरा परिवार, बट जब आप बोलो मेरा देश, जो एक तरीके से आपका परिवार है बट आपका सोशल परिवार है, आपका पूरा व्हाट यू कॉल देशवासी, वो हमारे प्लेज में है ना, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ओके, तो अगर वो फीलिंग, वो भावना आप रखते हो, जो जब आपके परिवार की पढ़ाई होगी, कुछ एक्सपेरिमेंट्स होंगे, उसको आप कह सकते हो माइक्रो इकोनॉमिक्स। बट जब ये पूरे देश की पढ़ाई होती है तो उसको आपको कहना पड़ेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, लेट्स टेक दिस स्टोरी अ लिटिल बिट, नॉट अहेड एक्चुअली, थोड़ा आगे और बहुत बहुत पीछे, कि what are the foundations of these words micro and macro. Okay, very quickly, the gentleman जो मेरे इस तरफ आए हैं, उनका नाम लेने के पहले ऊपर जो टेक्स्ट दिया है मैं वो आपके लिए पढ़ लेता हूँ। So very quickly, what has been mentioned, microeconomics and macroeconomics are 2 main branches of modern economics. Yes, we know that, and that is what we are going to study. The term micro, आपके ऑब्जेक्टिव्स के लिए प्लीज ध्यान रखना, is derived from the Greek word, the Greek civilization, okay, is considered to be one of the more educated. Well, अभी तो all the civilizations are educated, all the countries are educated, but the former, इसके लिए पढ़े लिखे लोग, so to say, पढ़े लिखे concepts वहाँ से उत्पन्न हुए हैं। Okay, Greek word micros, my pronunciation थोड़ा ऊंच नीच हो सकता है, my apologies for that. Which means small or a millionth part. अब ये millionth part is a very minute part, if I'm not mistaken, through the naked eye without a microscope वो हम देख भी नहीं पाएंगे, so very minute. The term macro is derived from the Greek word macros, which means large. Micro small, macros large. These terms were coined, मतलब लिखे गए थे, यूज किए गए थे by the Norwegian, Norway, okay, economist Ragnar Frisch of Oslo. Again, I'm very sorry अगर the word या इनका नाम मैंने correctly pronunciate नहीं किया. Okay, there is a possibility because it's a Norwegian name. Okay, so the pronunciation will be absolutely different, but I hope the wording is absolutely clear to you. So in his young age, in his old age, he is the one who has introduced or is spoken more about
द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, सो ये इन्होंने बिसाइड्स दिस, अगर आप आपका टेक्स्ट बुक पढ़ो पेज नंबर 1 पर, चैप्टर 1 के पेज नंबर 1 पर, यू विल फाइंड मैनी मल्टीपल इकोनॉमिस्ट. ओके, वेरी ओल्ड, न्यू क्लासिकल, मॉडर्न एरा इकोनॉमिक्स, काफ़ी लोगों का नाम लिखा गया है कि पहले इन्होंने शुरुआत की थी, फिर दूसरे ने थोड़ा उसके ऊपर रोशनी डाला, तीसरे ने थोड़ा और मॉडिफिकेशन किया. आप सब पढ़ सकते हो, बट बेसिकली इनको श्रेय दिया गया है कि ये दो कॉन्सेप्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं. ओके, सो मूविंग ऑन. इसके डेफिनेशन की अगर हम बात करें, आई मीन टू से माइक्रो, अभी मैक्रो के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. इन टूडेज लेक्चर वी आर नॉट गोइंग टू आफ्टर दिस डिस्कस अबाउट मैक्रो, क्योंकि उसका टाइम जब आएगा, कहते हैं ना वो गाना था ना, अपना टाइम आएगा, तो मैक्रो बोल रहा है अपना टाइम आएगा तब सीख लेगी, अभी चिंता मत करना. नाउ इट इज माइक्रो. ओके, माइक्रोस्कोप का माइक्रो. ओके, मॉरिस डॉब, वेरी सिंपल उन्होंने डेफिनेशन दिया है. क्या इन्होंने कहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज in fact well, the word that I use, microscopic study of the economy. इकोनॉमी का मतलब क्या है? many students, सबसे बड़ा तकलीफ वही है सर, ये इकोनॉमिक्स जो है, सबसे पहली बात तो सर ये क्या है, what do you mean, and very important सर, where is it useful, काम कहाँ पे आता है? ओके, मैं घर पे रहता हूँ तो इकोनॉमिक्स काम आता है, मैं बाहर जाऊंगा मार्केट में, मैं काम पे जाऊंगा तो क्या इकोनॉमिक्स काम आएगा? यस. द ओनली थिंग इज वहां पे कोई बोर्ड नहीं डाला है, यहां पे इकोनॉमिक्स का थियरी, यहां पे इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल यूज किया गया है. नो, वो बोर्ड नहीं डाला गया है. बट इकोनॉमिक्स इज समथिंग दैट डेफिनेटली सराउंड्स यू इन ऑल 360 डिग्रीज, नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट साउथ, फ्रंट बैक, लेफ्ट राइट. It affects you. It affects your family, definitely so. It affects a lot of pricing. Hold on. What do you mean by pricing? If today you are somebody who knows what that वो पेट्रोल का भाव बहुत ऊपर गया है, सेंचुरी मार लिया. ओके, सेंचुरी मार के अभी आगे 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 जा रहा है. भगवान जाने कब डबल सेंचुरी मारेगा, तो गाड़ियों को हमको म्यूजियम में रखना पड़ेगा अगर इतना कॉस्टली हो जाएगा. द प्राइसिंग ऑफ पेट्रोल, द प्राइसिंग ऑफ डीजल, द प्राइसिंग ऑफ केरोसिन, द प्राइसिंग ऑफ LPG सिलेंडर, द प्राइसिंग ऑफ अ बिस्किट पैकेट, द प्राइसिंग ऑफ फूड ग्रेन्स, द प्राइसिंग ऑफ पल्सेस. देयर आर इकोनॉमिक फैक्टर्स जो इनके भाव को असर करते हैं. डिमांड सप्लाई, ये इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं. तो माय डियर, इफ यू डोंट नो how does economic affect you, do know it does affect you. ये जानना जरूरी है आपको कि जो इकोनॉमिक्स में होता है, whether माइक्रो या whether मैक्रो लेवल पे. ओके, यू मे थिंक ओके सर मैं मेरे घर का ख्याल रखूंगा. माइक्रो, देश का मुझको क्या करना है? अगर देश का, अगर दिल्ली में बैठी सरकार कुछ निर्णय लेती है, मेरे को क्या फर्क गिरेगा? नो माय डियर, फर्क गिरेगा, क्योंकि वो सरकार जो मैक्रो लेवल पे देश के लिए ओके एक डिसीजन ले रही है, उसका असर कल नहीं तो परसों आपके ऊपर जरूर पड़ेगा. डेफिनेटली आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके परिवार के लोगों के ऊपर, आपके रिश्तेदारों के ऊपर पड़ेगा. इसके लिए तो काफ़ी लोग, जिन लोग सरकार से नाखुश है, वो सरकार को गालियां मारते हैं. क्यों? कि सरकार ये नहीं करती, सरकार वो नहीं करती. हाँ, बट सरकार जब कुछ करती है उसका असर आपके ऊपर डेफिनेटली होता है. तो प्लीज़ डू अंडरस्टैंड वन थिंग कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, और ये जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, समहाउ ओके आपको या तो डायरेक्ट इफेक्ट कर रहा है या तो घुमा फिरा के, बट इफेक्ट आपको ज़रूर कर रहा है. उसके वजह से या तो डायरेक्ट चोट लग रही है आपको, या तो चोट उसको लगी, दर्द आपको होगा, बट फीलिंग ज़रूर होगा. ओके, नेक्स्ट वन, प्रोफेसर A.P. लर्नर. ओके, लर्नर करके the wording almost comes out from that. Microeconomics consists of looking at the economy to a microscope. That's what we already know. As it were, to see how the millions of cells in the body of economy, you see, you एक इंसानी शरीर,
आपका शरीर, मेरा शरीर सेल से बना हुआ है. ओके, सो बैटरी वाला सेल नहीं. ओके, ये हमारे सेल्स होते हैं. एंड अ सेल इज एक्सट्रीमली माइन्यूट. ओके, सो देयर मे बी crores and crores of cells which create us, which are right now in us. ओके, और उसकी पढ़ाई, एक सेल की पढ़ाई, दैट इज व्हाट मिस्टर AP लर्नर इज कंपेयरिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स टू. ओके, स्टडी ऑफ जो माइक्रोस्कोप के अंदर एकदम जूम करके आप पढ़ाई करते हो. ओके, द इंडिविजुअल्स, तो ये फैक्टर्स कौन है, ये सेल्स कौन है इकोनॉमी के लिए. ओके, इंडिविजुअल्स, हाउसहोल्ड एज कंज्यूमर्स एंड इंडिविजुअल ऑफ फर्म्स एज प्रोड्यूसर्स, जो प्रोडक्ट्स का सेवन करते हैं, खाना करते हैं या उसको यूज करते हैं, या जो उन प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, मैन्युफैक्चरर्स, ये दोनों की पढ़ाई है, बट एक माइक्रो लेवल पे. सो व्हेन इट कम्स टू डेफिनेशन, मिस्टर मॉरिस डॉब और मिस्टर प्रोफेसर AP लर्नर, व्हाटएवर ये डेफिनेशंस ऑब्वियसली टेक्स्ट बुक के है, सारी पढ़ाई टेक्स्ट बुक से है. इफ़ योर प्रोफेसर इन कॉलेज, इफ़ योर टीचर इन कॉलेज गिव्स यू अ डिफरेंट ऑथर्स डेफिनेशन और वो थोड़ा और सिंपल होगा, तो प्लीज़ आप उसकी कोशिश ज़रूर कीजिए. ओके, नाउ प्रोफेसर AP लर्नर ने जो स्कोप है ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ना हम क्या क्या सीखने वाले हैं. वेल, सो द स्कोप मतलब माइक्रोस्कोप का स्कोप. व्हाट कैन आई सी इन माइक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, इन चीजों की पढ़ाई हम थोड़े आगे जाके करने वाले हैं सीरियसली, क्योंकि माइक्रोस्कोप के अंदर तो पूरा डिटेल लेखा जोखा, ओके, पूरा पर्दा फाश हो जाता है. ओके, सो scope of microeconomics में in future chapters to come, what are we going to learn theory thinking of what? Product pricing. What do you mean by product pricing? आपका मोबाइल 11,000 का क्यों है, आपका मोबाइल 1 लाख का क्यों है मोबाइल, आपका घर 1 करोड़ का क्यों है, आपकी गाड़ी. प्राइसिंग वो किस पे डिपेंड करता है, डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस. तो यू विल हैव टू लर्न डिमांड मतलब व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन डिमांड, किन चीजों की वजह से डिमांड ऊपर नीचे या कोई फर्क नहीं करता डिमांड को, वी हैव टू लर्न. ओके, आगे करेंगे. थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग. व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर प्राइसिंग, कि जो प्रोडक्ट आप खरीदते हो वो प्रोडक्ट बनवाने में किन किन लोगों ने मेहनत की है, उसको फैक्टर्स कहते हैं, और उसका भाव किस तरह तय हुआ है. अच्छा, व्हाट डज दैट मीन, व्हाट आर द फैक्टर्स. अगर मैंने मोबाइल खरीदा, अगर मैंने घर खरीदा, अगर मैं जाके भाजी खरीदता हूं, अगर मैं जाके फल खरीदता हूं, अगर मैं चश्मा खरीदता हूं, क्या था, किन लोगों ने ये प्रोडक्ट को बनाने में हेल्प किया. रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट. रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट. यू विल से बट सर मैंने तो किसी को रेंट नहीं भरा, मैंने किसी को वेजेस नहीं भरा, मैंने किसी को इंटरेस्ट नहीं दिया, मैंने तो प्रॉफिट नहीं कमाया, मैंने तो पैसे दिए सर, क्या प्रॉफिट हो गया. नहीं, आपने जो प्रोडक्ट खरीदा उसको उत्पादन में लाने के लिए, मतलब उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए काफी लोगों ने बलिदान दिया. बलिदान, हु हैज सैक्रिफाइस्ड. वेल, कुछ जगह का इस्तेमाल हो गया रहेगा, फैक्ट्री, उसका भाड़ा किसी ने दिया है, बराबर. ऐसा नहीं कि नहीं मेरे ससुर की जगह है फ्री का, नहीं भाई, आजकल तो ससुर भी भाड़ा लेगा. सो वो हो गया रेंट. समबडी हैज पेड, देन इट हैज बीन रिकवर्ड फ्रॉम यू. सम वर्कर्स हैव वर्कड, उनका पगार समबडी हैज पेड, इट हैज बीन रिकवर्ड फ्रॉम यू. नेक्स्ट, इंटरेस्ट, किसी ने तो अपना पैसा डाला होगा, कुछ कर्जे लिए गए होंगे, उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया गया, somebody has paid, it has been recovered from you. And the lastly, प्रॉफिट कौन कमाता है, जो बिजनेसमैन होता है ना, ओके, एंटरप्रेन्योर, जो बिजनेसमैन होता है उसने भी तो प्रॉफिट कमाया है, वरना अगर वो प्रॉफिट नहीं कमाएगा. सो आई रिपीट, प्रोडक्ट का थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, सेकेंड इज थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, ओके, एंड द लास्टली इज थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर. अब ये इकोनॉमिक वेलफेयर का मतलब क्या, बेहतरी. ओके, किसकी बेहतरी, देखो, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, दिस इज वन काइंड ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर.
एफिशिएंसी इन कंजम्पशन, प्रोडक्शन मतलब उत्पादन कैसे करना है, बेस्ट उत्पादन कैसे करना है, फालतू वेस्ट कैसे दूर करना है, कंजम्पशन वेस्ट नहीं होना चाहिए। ओके मतलब अगर आप किसी शादी में जाते हो, मेनी टाइम्स ऐसा होता है, मेनी टाइम्स बड़े बड़े लोगों की शादी में कि बहुत खाना जो खाया जाता है गुड, पर जो वेस्ट किया जाता है दैट्स वेरी बैड। कभी काफ़ी गरीब लोग वो खाना खा सकते थे, हाँ, तो उसमें एफिशिएंसी नहीं, जो ऑर्डर किया ना एकदम बराबर दिया गया। ओके एकदम कट टू कट नहीं होता, बट थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, बट बहुत वेस्ट नहीं होना चाहिए, एफिशिएंसी। एंड द लास्ट इज ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। इन अपकमिंग चैप्टर्स we will little by little discuss the theory of product pricing, the theory of factor pricing, and the theory of economic welfare, little by little. Today's big mudda, so very quickly let me go through the different theories. Again detail में नहीं जा रहे because the chapter or the lecture today is not about these theories. These are going to be in upcoming lectures to come. Okay, so very quickly, अगर जो मैंने पहले बोला वो आपको नहीं समझा तो आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये सारा कुछ आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, यहाँ वहाँ पे थोड़ी बदलाव किए गए हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द लेक्चर। सो दिस इट सेज प्रोडक्ट प्राइसिंग का मतलब क्या, द प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल कमोडिटी प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो आपको समझना चाहिए what is demand forces, what are supply forces. This is what will explain to you product pricing. Next, factor pricing. In microeconomics, land, labor, capital and entrepreneur. Land के लिए आपको भाड़ा देना पड़ेगा, लेबर को आपको वेजेस देना पड़ेगा, कैपिटल के ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, एंटरप्रेन्योर को क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। हाँ, तो ये होते हैं वो प्राइजेस जो आप देते हो इन फैक्टर्स को। एंड लास्टली economic welfare. Theory of welfare basically deals with the efficiency. Efficiency का मतलब क्या होता है, अगर मेरा मोटर बाइक में 1 लीटर पेट्रोल डालूं और वो 40 किलोमीटर जाती है, ओके, और मैं इंजन में कुछ चेंजेस करूं, कभी कभी कचरा जमा होता है ना, मैं क्लीन करूं, कार्बोरेटर को क्लीन करूं, एकदम मस्त हो चुकी है मेरी बाइक। अभी 1 लीटर में मेरी बाइक 45 किलोमीटर जाती है, पहले 40, अभी 45, मतलब आपकी बाइक एफिशिएंट बन चुकी है। उतने ही पेट्रोल में वो आपको और दूर लेकर जा रही है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट फंडा कि एफिशिएंसी का मतलब परफॉर्मेंस। तो यहां पे आपको कौन से एफिशिएंसीज पे चर्चा अभी नहीं, बाद में होगी। पहला प्रोडक्शन की एफिशिएंसी, फिर कंजम्पशन की एफिशिएंसी, फिर ओवरऑल एफिशिएंसी पे। Okay, again, based on these theories is not our lecture today. Our lecture today is basically on the features of microeconomics. Meaning to say, what are the features of a well-built muscular person? कोई जिम जाता है ना और एक्सरसाइज करता है, वेट्स उठाता है, तो you would, अगर आप पूछो ये बंदा जो है ना इसकी फीचर्स क्या है, अरे उसका आपने जॉ लाइन देखा है क्या, वेरी नाइस, उसके बाइसेप्स देखे हैं, अमेजिंग, उसका बैक, अरे अमेजिंग, थाई अमेजिंग, फीचर्स, लुक में फीचर्स। उसी तरह व्हेन यू टॉकिंग अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स में वो दिखने में कैसा है, ओके, उसका नाक नक्श कैसा है, ओके, उसके साथ जब मैं बात करूँ तो उसका व्यवहार कैसा है, something like that. Okay, let's get started. I think अगर मैं गलती नहीं कर रहा, there are around 8 features. Yes, you can always get a question based on features. Define microeconomics. What are the features of microeconomics? तो देख लेते हैं. So, first thing, study of individual units. What do you mean by that? अरे वो मैंने आपको स्टार्ट में बोला ना, मैं एक सेब खरीदने गया, एप्पल, not 5 dozen एप्पल। तो इन microeconomics we are not worried about the whole world, the whole nation. अरे नहीं रे, मेरे को मेरा घर के बारे में सोचने दो ना। So microeconomics is a पढ़ाई लिखाई of single, not multiple. Very simple. Okay, अगर कुछ मेरे को लंबा चर्चा करना है, चर्चा करूंगा if it is required, but यहाँ पे no, it is a study of a cell.
माइक्रोस्कोप के अंदर यू आर स्टडिंग अ सेल. ओके, तो व्हेन आई टॉक अबाउट अ लेबोरेटरी द वर्ड इज सेल, बट व्हेन यू टॉक अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स द वर्ड इज अ इंडिविजुअल यूनिट. मतलब एक सिंगल इंसान एक इंडिविजुअल यूनिट है, एक दुकान एक इंडिविजुअल यूनिट है, एक घर एक इंडिविजुअल यूनिट है. तो इसकी पढ़ाई आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में करोगे. ओके, तो वो हो गया फर्स्ट फीचर. दूसरा क्या है? प्राइस थियरी. अच्छा, ये प्राइस थियरी का मतलब क्या होता है? वेल, लेट्स सी. प्राइस डिटरमाइन कैसे किया जाता है? गुड्स के और सर्विसेज के. मतलब देखो भाई, इफ यू आर समबडी जो ये दुनिया में रहता है, 99% जंगल में रहता नहीं है, 99% है कुछ लोग हैं, ओके, और उनकी मर्जी, अच्छा है, वो नेचर में रहते हैं. बट इफ यू आर स्टेइंग समवेयर in a social climate, that means there are many things surrounding you. There are the houses, there are the families, there are shops, there are companies. So you are buying products and you are buying services. Services का मतलब क्या है? ये गराज वाला है, तो अगर आप आपकी गाड़ी को गराज में लेके जाते हो तो वो आपको सर्विस देता है कि सर देखो खराब हो गई, ठीक करके दो ना. वो आपको सर्विस, रिपेयर देता है, सर्विस. उसका प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है? ओके, दैट इज एक्सप्लेन्ड, लर्न्ड in the subject of microeconomics. Okay, होगा आगे जाके, चिंता ना करें. नेक्स्ट, partial equilibrium. Now यहाँ पे when you talk about the word equilibrium, let me just shift and then I'll get you the text. What do you mean by equilibrium? See, it's somehow from the word equal. और equal का मतलब क्या है? equal, अप डाउन नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए. क्या सेम होना चाहिए? डिमांड सप्लाई. ये डिमांड सप्लाई के बारे में अगेन एंड अगेन टॉपिक उस पे कैसे आ जाता है? बिकॉज वेन एवर यू टॉक अबाउट प्राइस, द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट समहाउ इज कनेक्टेड टू द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट. द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज समहाउ कनेक्टेड टू द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट. ओके, बोथ ऑफ दीज फैक्टर्स मिलके डिटरमाइन करते हैं कि प्राइस क्या होना चाहिए. सो आई रिपीट माई सेल्फ, वेन यू टॉक अबाउट पार्शियल इक्विलिब्रियम, वेरी क्विकली, मेरे ऊपर क्या दिया गया है? अगेन, इफ यू आर लाइक सर उस तरफ क्यों देख रहे हो? उस तरफ क्या है? मेरा स्क्रीन उस तरफ है, इसके लिए मुझे वहां पे देखना पड़ रहा है. ओके, इक्विलिब्रियम इज द बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर्स, डिमांड सप्लाई, टू फैक्टर्स. माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस डील्स विथ पार्शियल इक्विलिब्रियम, नॉट फुल इक्विलिब्रियम, which analyzes equilibrium position of individual economic unit. Individual, इसके पहले था ना study of individual unit, that is consumer, individual family, individual home, individual shop. Okay, it isolates an individual unit from other forces and studies its equilibrium independently. What do you mean by isolates? Isolates का मतलब क्या है? You see, अगर कोविड का जो स्टडी था ना, कोविड वायरस का स्टडी, देर आर मेनी साइंटिस्ट वैक्सीन बनाने के पहले दे डिड द स्टडी ऑफ द कोविड वायरस. When somebody was infected, this is I presume the last around 1.5 year पुरानी बात कर रहा हूँ मैं, when the research was going on in various laboratories in the world. Okay, when somebody got COVID, how do you study it? Because you have to know something called as the genetics. Okay, क्योंकि उसके ऊपर बेस्ड जो उसका वैक्सीन है वो बनाया गया है. Okay, so blood is drawn from the person जिसको कोविड हुआ है, because it has spread into the bloodstream, and then that part which is affected by the COVID infection उसको isolate किया जाता है. Okay, so there's a lot of blood, there's a lot of things that make the component of blood. Okay, a lot of blood, red blood corpuscles, white blood corpuscles वगैरह वगैरह वगैरह. So to study the COVID virus उसको isolate किया जाएगा and उसको पढ़ा जाएगा. तो उसी तरह इन नॉट एग्जैक्टली लाइक जो लेबोरेटरी में होता है, बट जो इकोनॉमिक्स के लेबोरेटरी में होता है. ओके, दैट द इंडिविजुअल यूनिट, इंडिविजुअल व्यक्ति, इंडिविजुअल घर, इंडिविजुअल दुकान, इंडिविजुअल इंडस्ट्री को आइसोलेट किया जाएगा और उसका जो इफेक्ट है इक्विलिब्रियम पर, डिमांड सप्लाई फैक्टर्स पे, वो स्टडी किया जाएगा. सो दैट्स द मीनिंग ऑफ पार्शियल इक्विलिब्रियम. ओके, स्टडी ऑफ दीज फैक्टर्स बाय आइसोलेटिंग देम, अलग करके, क्योंकि जब वो अकेले होंगे तो सिर्फ उनकी पढ़ाई होगी, उनकी नेचर की पढ़ाई होगी.
बट जब वो दूसरों के साथ रहेगी तो ऑटोमेटिकली वो उनका व्यवहार थोड़ा अलग रहेगा। हाँ, नेक्स्ट थिंग, चलिए भाई अभी मुझे उस तरफ शिफ्ट होना है। बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशंस, व्हाट डू यू मीन बाय अजम्पशन? अजम्पशन मतलब अगर कुछ काम होने वाला है तो ये वो होना ही चाहिए। एक मिनट, अगर मैं पानी पूरी खाने जाऊं तो अजम्पशन क्या है? पूरी मिलेगा, सिर्फ पानी नहीं मिलेगा। ओके, या सिर्फ पूरी मिला और पानी नहीं मिला, पानी मिला और पूरी नहीं मिला, वो तो अज्यूम्ड है कि देयर विल बी पानी पूरी में पानी एंड पूरी मिनिमम। ओके, चिकन बिरयानी में तो चिकन तो होना चाहिए ना, अदरवाइज आप चिकन बिरयानी इसको क्यों बोल रहे हो? तो वो तो अजम्पशन है, ऑब्वियसली वो होना चाहिए। हाँ, तो आई रिपीट माई सेल्फ, वेन एवर एनी वर्क इज अंडरटेकन, एनी रिसर्च इज, एनी स्टडी इज डन in microeconomics based on certain assumptions. What assumptions? अगर आप ऊपर पढ़ो, other things remaining constant. What do you mean by that? ये जो पेंटर है ना, वो सामने जो चीजें हैं उसके ऊपर अपनी पेंटिंग बना रहे हैं। वो जो सामने चीजें हैं क्या वो कॉन्स्टेंटली मूव हो रही है? नो, पेंटर डिस्टर्ब होगा, बोलेगा कॉन्स्टेंट, स्टे द सेम, तो ही मैं आपकी पेंटिंग बना सकता हूं। हाँ, तो इकोनॉमिक्स में भी ऐसे कुछ है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ओके, व्हेन अ सर्टेन स्टडी रिसर्च इज बीइंग डन, ओके, देयर आर सम फैक्टर्स व्हिच हैव टू रिमेन कांस्टेंट। अगर वो ऊपर नीचे जाए तो वो स्टडी होना पॉसिबल नहीं होगा। सो अबाउट इट सेज ceteris paribus, such as perfect competition, such as laissez-faire policy, pure capitalism, full employment, these assumptions make the analysis simple. Analysis is nothing but a study, और अगर स्टडी सही तरीके से होना चाहिए। ओके, कि अगर कोई मुझे गाड़ी की चाबी देगा और बोलेगा आप मार्केट में जाओ और ये चीज़ खरीद के लेके आओ, तो मैं तो ये ऑब्वियसली सोचूंगा कि भाई पेट्रोल होगा उसके अंदर, अजम्पशन, पेट्रोल होना चाहिए। ऑब्वियसली मैं धक्का मार के लेके जाने वाला नहीं हूँ। सिमिलरली जब माइक्रो इकोनॉमिक्स में कोई भी तरह का रिसर्च किया जाता है, स्टडी किया जाता है, कुछ चीज़ें सोची जाती है कांस्टेंट रहेगी, ये बदलने वाली नहीं है, ये अप एंड डाउन होने वाली नहीं है। नाउ ऑब्वियसली ये चीज़ें क्या होती है as far as economics is concerned, as in when this story goes ahead we will get into that. Right now you have to remember कि assumptions किए जाते हैं, और assumptions please note सभी लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि इकोनॉमिक्स में ही होता है। अगर घर में बहू आने वाली है तो जो सासू माँ है ना, वो ये assumption करेगी कि जब वो आएगी तो घर का ख्याल रखेगी, घर वालों का ख्याल रखेगी। ओके, जब बहू आ रही है तो बहू ये सोचेगी क्या सासू माँ कड़क नहीं होनी चाहिए, प्यार करनी चाहिए। ओके, समथिंग लाइक दैट, assumption सोचेगी कि ऐसा होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, स्लाइसिंग मेथड। व्हाट डू यू मीन बाय स्लाइसिंग? पिज्जा, फुल पिज्जा, स्लाइस ऑफ द पिज्जा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होगा, हम लोग पूरा पिज्जा का पढ़ाई करेंगे? नहीं, वो बहुत बड़ा है, वो बहुत बड़ा है। हम लोग उसके एक स्लाइस की पढ़ाई करेंगे। जो हम लोग एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, रिसर्च करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं, ओके, वो हम एक स्लाइस पे करेंगे, पूरे पिज्जा पे करने वाले नहीं है। सो बेसिकली इट मीन्स कि पूरे देश की चिंता माइक्रो में नहीं होगी, मैक्रो में होगी बाद में। हम लोग तो एक यूनिट स्लाइसिंग मेथड से ओके हम लोग सीखने वाले हैं। तो दैट्स बेसिकली द सिंपल मीनिंग ऑफ स्लाइसिंग मेथड कि भाई पूरे देश का नहीं, पूरे पिज्जा का नहीं, एक स्लाइस की पढ़ाई। नेक्स्ट, लिटिल बिट ऑफ अ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, बट देन डिटेल में ये बाद में आपको पढ़ाया गया है। यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड मार्जिनल? थोड़ा, मार्जिनल मतलब थोड़ा। तो अगर गाड़ी पार्क किए जा रही है, पार्क गाड़ी को पार्क कर रहे हैं ना,
तो ड्राइवर अपने अगर बाजू में कोई बैठा है बोलेगा तू बाहर जाना थोड़ा, और मेरे को बोला पीछे गाड़ी है मेरे को ठोकना नहीं है उसको, ओके, मैं जैसे ही रिवर्स मारता हूँ मेरे को बोल थोड़ा जगह होना चाहिए, तो वो रिवर्स मारेगा और एकदम 1 इंच का मार्जिनल जगह बचा था, तो उसका दोस्त बोलता है रुक 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 वरना ठोक जाएगा तू। हाँ, मार्जिनल, थोड़ा, ओके। तो यहाँ पे जैसे लिखा है ना, जस्ट वन मोर, या आई होप दैट कैन बी सीन बाय यू, ओके। सो नो, ये मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? वेल, पढ़ लेते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनलिज्म इज द की टूल, चाबी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, ओके। द टर्म मार्जिनल मीन्स, मैंने अभी भी बताया, चेंज बॉट, बदलाव, परिवर्तन, इन टोटल बाय एन एडिशनल यूनिट। मतलब अगर मैं 40 किलोमीटर मेरी गाड़ी को चलाने वाला हूं, पर बाद में मैं सोचता हूं नहीं यार 1 किलोमीटर और आगे जाता हूं, तो उससे मेरे पूरे डिसीजन पे क्या फर्क गिरेगा? एक एक्स्ट्रा, जस्ट वन मोर। अगर मैं 10 चीजें खाने वाला हूं पर मैं बोलता हूं नहीं यार बहुत टेस्टी है, तो ओके, मैं थोड़ी लालच ज्यादा हो गई है, एक और, तो पूरे कॉस्ट प्राइस पे क्या उसका फर्क गिरेगा? ये जो मार्जिनलिज्म है, एक और, ओके, उसकी पढ़ाई हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में करने वाले हैं। मार्जिनल एनालिसिस हेल्प्स टू स्टडी अ वेरिएबल। द वर्ड वेरिएबल मीन्स व्हाट? जो बदलता है। दो वर्डिंग्स आप याद रखिए जनरली लाइफ में, ओके, एटलीस्ट जहां तक ये कॉन्सेप्ट्स है, फिक्स्ड और वेरिएबल। फिक्स्ड का मतलब क्या है? अरे मेरे एक अंकल है, हाँ, वो घर में खुशी का मौका हो, गम का मौका हो, ओके, उनका चेहरा वैसे के वैसे ही है, बदलता ही नहीं है, फिक्स्ड, ओके। अरे पर मेरा एक दोस्त है, मतलब उससे बात करने की जरूरत नहीं है, उसके चेहरे से पता चल जाता है कि वो खुश है, कि वो दुख है, वो चिंता कर रहा है, ओके। वेरिएबल, चेंज होते रहता है, फेशियल एक्सप्रेशन, मतलब जो भी चीज बदलता है उसको कहते हैं क्या? वेरिएबल। जो फिक्स्ड आपके घर के अंदर, ओके, जो घड़ी है वो उसकी पोजीशन फिक्स्ड है, बट जो कांटे है उसकी पोजीशन फिक्स्ड नहीं है, वो घूमती रहती है, उसको वेरिएबल कहते हैं। सो मार्जिनलिज्म मीन्स एक और अगर मैं खाऊं, एक और अगर मैं खरीदूं, एक और अगर मैं प्रोड्यूस करूं, तो टोटल पे क्या असर होगा? वी विल लर्न नेक्स्ट। फिर हम क्या सीखने वाले हैं? ऑलमोस्ट एट दी एंड, एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। ये व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट स्ट्रक्चर? डिफरेंट कंट्रीज इन डिफरेंट सेक्टर्स। अभी सेक्टर का मतलब क्या होता है? इंश्योरेंस एक सेक्टर है, लाइफ बैंकिंग एक सेक्टर है, ओके, टेक्सटाइल एक सेक्टर है, टेलीकम्युनिकेशन एक सेक्टर है। तो ये सेक्टर्स होते हैं और हर कंट्री में ये सेक्टर्स है और उसमें अलग अलग कंपनीज काम कर रहे हैं। इंडिया में ये सेक्टर्स है, यूके में है, यूएस में है, अफ्रीका में है, केनिया में है, हर कंट्री में है, ओके, श्रीलंका में, पाकिस्तान में है, नेपाल में है, ओके। एवरी कंट्री में ये अलग अलग सेक्टर्स रहते हैं और अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग कंपनीज काम करते हैं, अलग अलग लोग काम करते हैं, ओके। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी आर नॉट गोइंग टू लर्न द मार्केट्स ऑफ द एंटायर कंट्री, नहीं, अपना लोकल मार्केट कौन से टाइप का हो सकता है? देखो वो ना अलग अलग वेराइटी है, डिपेंड करता है कैसे। परफेक्ट कंपटीशन ये कहा जाता है, ये सिर्फ क्या बोलते हैं, किताब में लिखा है, देखो नीचे लिखा है रेयर इन रियलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय रेयर इन रियलिटी? रेयर, ओके, कि अरे मैं गया था मध्य प्रदेश, क्या देखने के लिए? वो मैं जंगल सफारी देखने के लिए गया था, मेरे को शेर देखना था, टाइगर देखना था, 2 घंटा घुमा गाड़ी के अंदर, यार दिखा ही नहीं मेरे को। तो भाई वो रेयरली दिखता है। वो कोई तू यहाँ पे टिकट बुक किया, वो वहाँ पे रुकेगा नहीं, हाँ मेरे को देखने के लिए आने वाला है, नहीं, रेयरली दिखता है। उसी तरह मार्केट्स में परफेक्ट कंपटीशन रेयरली दिखता है, ओके। कपड़ा अगर आप स्टिच भी करो, ओके, दर्जी से सिलाओ, रेयरली वो परफेक्ट होगा। आधा इंच कम ज्यादा, ओके, आधा इंच छोटा लंबा,
थोड़ा रेडीमेड खरीदोगे तो वो तो कभी आपको फिट होने वाला नहीं है. इट्स वेरी रेयर. देयर विल बी सम परफेक्ट. मुश्किल है. कहते कि ऊपर वाला परफेक्ट है, उनके अलावा कोई भी परफेक्ट चीज नहीं है. हाँ, 19-20 तो होता ही है. तो परफेक्ट कंपटीशन वाला मार्केट मतलब खरीदने वाले बहुत है, बेचने वाले बहुत है, ये ऐसा मार्केट नहीं है. ओके, दोनों में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ रहता ही है. तो यहाँ पे बोला है मेनी कॉम्पिटिटर्स ऑल ऑफरिंग द सेम प्रोडक्ट. मेरे को एक प्रोडक्ट खरीदना है और इतने दुकान है. आगे intense competition, competitors have to accept the same price. So this market जिसमें ये फीचर्स है perfect competition, ये एक टाइप का मार्केट है. थोड़ा नीचे monopolistic competition. मोनो मतलब एक. अगर आप पढ़ो many small firms offering differentiated products. छोटी छोटी दुकान, अलग अलग प्रोडक्ट्स. each firm has a small market share. मार्केट में एक हिस्सा, एक ज्योग्राफी पे, एक लोकेशन पे उनका मतलब ये इधर बटाटा वड़ा बेचता है, वो उधर बटाटा वड़ा बेचता है, ये अपने एरिया में खुश है, वो अपने एरिया में खुश है. एग्जाम्पल इंक्लूड्स रेस्टोरेंट्स. मैंने बटाटा वड़ा कहा बट खाने पीने का भी है. ओके, मेनी लोकल सर्विस बिजनेसेस. ये होता है एक तरीके का मार्केट जिसको कहते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. एक जगह पे उनकी मोनोपोली होती है. ऊपर अगले पेज पे ओलिगोपोली. Now please note all of these we have to learn in detail, in fact not just in economics but in other sub chapters also, especially आपको OCM में ये भी पढ़ाया जाएगा. So market dominated by small number of firms each with a large market share. monopolistic में क्या था? small number of firms with a small market share. ओलिगोपोली में क्या है? स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स विद अ लार्ज मार्केट शेयर. वी हैव टू लर्न क्योंकि ये डिमांड सप्लाई सब चलता कहाँ पे है? ये सब चलता है मार्केट के अंदर. ओके, नीचे मोनोपोली. दिस शुड नॉट हैपन इन एनी मार्केट. क्यों? फिर कस्टमर रोएगा. क्यों कस्टमर रोएगा? क्योंकि उसके देश में मोबाइल का प्लान एक ही कंपनी बेचता है. अगर वो होगा तो वो कंपनी जो प्राइस बोलेगा, अगर हमारे भारत देश में सिर्फ देयर आर मेनी पीपल हु आर वेरी वेरी हैप्पी कि जियो ने इंटरनेट का प्राइस कम कर दिया है. गुड, सच है. फ्री 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 देकर सच कम कर दिया उन्होंने वोडाफोन को, एयरटेल को मजबूर कर दिया प्राइस को कम करने के लिए. नाउ तो काफी लोग, कुछ लोगों ने ऐसा सोचा होगा फिर एयरटेल की क्या जरूरत है, फिर वोडाफोन की क्या जरूरत है, बंद करो सबको, जियो तो दे ही रहा है. अरे बाबा, बट अगर मार्केट में सिर्फ जियो बच जाएगा तो सबका जीना मुश्किल हो जाएगा. तो आई रिपीट माई सेल्फ, यू कैन नॉट हैव जस्ट वन सर्विस प्रोवाइडर. कंपटीशन नहीं रहेगा. यू मस्ट हैव कंपटीशन बिकॉज व्हेन देयर इज कंपटीशन, जब जियो एयरटेल को टक्कर देता है और वोडाफोन एयरटेल को टक्कर देता है तो ये सब के लिए अच्छा होता है. अगर आप बॉक्सिंग मैच देखने को गए और एक ही है वहां पे बॉक्सर, बाकी के लोग डर के चले गए, यार फिर मैच किसके साथ होगा? हमने टिकट किस बात का खरीदा? हाँ, तो वही है. There has to be competition. So monopoly is not a good form of market that you should be having. So we will learn different kind of markets. Okay. थोड़ा पोजीशन अपना चेंज कर लूँ. Next, the last point. Limited scope. What do you mean by limited scope? अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर झांक के देखोगे आपको दुनिया नजर आएगी? No. माइक्रोस्कोप के अंदर जो रखा गया है वो भी दिखता नहीं है. इट गोज टू द मिलियंथ पार्ट. वो तो एकदम अंदर जाता है. सो व्हेन यू टॉक अबाउट लिमिटेड स्कोप, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ओनली वरीड अबाउट छोटा 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 छोटा. बड़ा 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 बोलेगा मेरा टेंशन नहीं है, वो मैक्रो का टेंशन है, मैक्रो में जाके पढ़ो. बराबर है, हमको मैक्रो में जाके वो पढ़ना पड़ेगा. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो स्कोप होता है, देखने का स्कोप, वो एकदम बड़ा नहीं है, वाइड एंगल लेंस नहीं है. वो एक ही छोटी चीज को देखता है, समझता है और सीखता है. 8 पॉइंट्स. हाउ डू यू रिमेंबर द 8 पॉइंट्स? वेल, हमारे
आदरणीय प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, आप सोच लो, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं हाथ जोड़कर, या तो आपको आगाह कर रहे हैं, वॉर्न कर रहे हैं। उन्होंने आपको ईमेल भेजा है, पीएम ईमेल। उस ईमेल में क्या लिखा है? इकोनॉमिक्स को हल्के में ना लो बच्चों, हल्के में ना लो, क्योंकि वो ऐसा है जो आप खा तो लोगे, समझ नहीं पाओगे तो अटक जाएगा, अंदर हजम नहीं हो पाएगा। देयर आर मेनी सब्जेक्ट्स इन 12th स्टैंडर्ड दैट यू हैव टू वरी, बट इकोनॉमिक्स का जो पायदान है, चिंता का पायदान, वो थोड़ा ऊपर होना चाहिए। बिकॉज इफ यू डू नॉट टेक इकोनॉमिक्स का पढ़ाई सीरियसली, देन तबीयत सीरियस ज़रूर हो जाएगी। अभी नहीं, जब एग्ज़ाम आएगा ना तो ऑटोमेटिकली प्रेशर ऊपर जाता है। तो प्लीज़, पीएम ने आपको ईमेल किया है कि इकोनॉमिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्टीवन सर की बात सुन लेना, और ध्यान से समय समय पर जब स्टीवन सर लेक्चर इको का अपलोड करते हैं तो उसको फट से पढ़ लेना, ताकि छोटे छोटे डोजेस में आप माइक्रो 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 करके एट द एंड ऑफ द ईयर मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरा समझ जाओगे। सो व्हाट डज पीएम ईमेल्स मीन? द फॉलोइंग। पीएम से बेसिकली ये कोडवर्ड है आपको याद दिलाने के लिए, नॉट द 8 पॉइंट्स इन द ऑर्डर ऑफ द 8 पॉइंट्स, क्योंकि ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, 8 पॉइंट्स का होना इंपॉर्टेंट है। ओके, हाँ। सो पीएम स्टैंड्स फॉर प्राइस थियरी, मार्केट स्ट्रक्चर, जो अभी भी हमने डिस्कस किया। ईमेल्स स्टैंड्स फॉर पार्शियल इक्विलिब्रियम, marginalism, assumptions, individual units, limited scope and slicing method. Okay, this PM emails, I'm not saying makes absolute sense. In fact, जब मैं OCM पढ़ाता हूँ, जब मैं SP पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पर भी अगर किसी तरह का शॉर्ट फॉर्म में आपको देता हूँ, किसी तरह का कोड वर्ड में आपको देता हूँ, इट विल नॉट ऑलवेज मेक सेंस। और मैंने तभी भी बोला है, इसमें कोई कायदा कानून ढूंढने मत जाओ। हाँ, आई कैन ओनली होप कि एंड आई कैन ओनली प्रे कि जो आपको दिया गया है वो आपकी मदद करेगा व्हेन द एग्जामिनेशंस अप्रोचेस, इन रिमेंबरिंग these points in a little bit of a easier manner. Okay, this is it for me today. 8 points हमने कवर अप किए। डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसका स्कोप क्या है, बट वो जो स्कोप है थियरी वो हम थोड़ा थोड़ा करके आगे डिटेल में सीखेंगे। आज का मुद्दा जो बहुत इंपॉर्टेंट था was what features of microeconomics. Most probably the next time we meet it will be importance of microeconomics, and then accordingly उसके बाद में हम macroeconomics पे भी हमारी गाड़ी लेके जाएगी, और थोड़ी थोड़ी हमारी गाड़ी का गियर भी आगे बढ़ जाएगा। If you have understood everything that has been explained to you, नहीं समझा है तो आप लेक्चर जो नहीं समझा, जो पॉइंट नहीं समझा, आप वापस उसे दोबारा देख सकते हो। ओके, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन दैट। ओके, लेक्चर अगर आपको समझ में आ गया तो हमारा दरख्वास्त है आपसे, हमारा रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ आप हमारे इस लेक्चर को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करना है तो बेहिचक होकर आप कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल भी कर सकते हो। इफ़ देयर इज़ एनी कॉन्सेप्ट विच वॉज नॉट अंडरस्टूड और नॉट एक्सप्लेन्ड एडिक्वेटली वेल, यू कैन ऑलवेज मेंशन इट। आई विल डू माय बेस्ट कि अगर नेक्स्ट लेक्चर में वो कनेक्टेड हो जाता है तभी मैं वहाँ पे उसको एक्सप्लेन आपको अलग से करा दूँ, नॉट जस्ट आपको, बाकी सब के लिए भी वो हो जाएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो, बेल आइकन दबा दीजिए नहीं किया है तो, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, अपना ख्याल रखिए, अपने बड़ों का, अपने छोटों का, अपने परिवार वालों का। टेक केयर ऑफ everyone who is near and dear to you. Stay safe till the time we meet again. Good day to all of you. God bless. Bye bye.